In the very first, we have done what is history of business in India. Secondly, we have done what does the word business itself means, and business के अंदर, under business, how we define it into primary, secondary and tertiary, the rich legacy of business in our country, ये हम लोगों ने पढ़ा है. Then the concepts of risk and profit. ये तो हमने पहले चैप्टर में हमें ये पता समझ आ गया है that business is something which is busy and ness, that is busyness, यानी कि something which we are doing on a regular manner to earn our livelihood. In India, now we come to the portion India. India में कौन कौन से forms of business है? In all the countries you have two forms of business. One is private sector and second one is public sector. Countries like US have always stressed on private sectors more and public sectors less. Whereas USSR पहले आपका public sector को लेकर चलता था, फिर private में. India is mixture of both. We have public sector also, we have private sectors also. And जब हम private बोलते हैं, which is owned by people like you and me, that comes under private sector. And public sector, which is owned by the government or through certain laws they are created. उसमें हमारा आ जाता है sole proprietorship. Second is partnership. The only business which exists only in India, Hindu undivided family business, cooperative sectors, company, and company के अंदर ही हमारा आ जाता है the formations of company. Sole proprietorship, as a word itself says, sole मतलब अकेला, and we are using the word proprietor. For partnership we use the word firm. For company we use private limited, public limited हम use करते हैं, and cooperative के साथ cooperative society use करते हैं. मतलब ये आपके जो पीछे लिखे होते हैं टेल, they tell us the kind of business. Proprietor मतलब single owner. It can be a small shop near our business, near our homes, or it can be even a business which is managed by a single person. You can see it's a popular form of business, and it is जब शुरू में हम start करते हैं तो we can go for sole proprietorship in the very beginning. Then definitely we can go for OPC, one person company, and then we can shift it over to all the business which has established over years. Sometime they might have been sold. कुछ partners थे like आपका Infosys. Infosys was a partnership because it was from by 4 friends थे. Whereas आपके कुछ कंपनी ऐसी थी जो अकेली थी, बाद में they were transformed into company. It refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual. The person who has established this, he is the earner of profit, but at the same time he is bearer of risk also. कल को business uncertainty से we have read uncertainty factors, we have read the risk factor. अगर उसकी वजह से business बंद होता है तो the sole proprietor is the one who is going to be affected. हमारे छोटे छोटे बिजनेस जिसके अंदर ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, या इवन देयर कैन बी स्मॉल टाइम स्मॉल होम बेस्ड जो आपके कॉटेज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होते हैं, दे आर ऑल्सो ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप. वी हैड अ फ्रेंड, मतलब वी हैड अ नेबर इन दिस दिलशाद गार्डन ओनली, दिलशाद कॉलोनी ओनली. हमारे पड़ोसी थे, तो दे वर मैन्युफैक्चरिंग दिस थ्रेड, अमीटो,
एंड ही यूज टू ओन इट, मतलब वो जो सर थे वो वहीं करते थे, उनके घर में पीछे की तरफ उन्होंने कारखाना बना रखा था, उनके फैमिली मेंबर्स ही लगे रहते थे एंड ही वाज द वन हु वाज ऑपरेटिंग इट। अभी मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट हैव द कॉन्टैक्ट। इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू कंपनी, क्योंकि कंपनी में तो आपके मिनिमम आपको जो है कैपिटल देयर इज अ, मतलब कि देयर इज अ कैप विच इज फिक्स्ड बाय द कंपनी लॉ, और सोल प्रोप्राइटर हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। सो वी डोंट रिक्वायर द कैपिटल, वी रिक्वायर द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। छोटी सी दुकान है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बट इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ, थोड़ा स्केल आपका बड़ा है, इट कैन बी नॉर्मली जहाँ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, दिस कम्स इन पेपर ऑल्सो बेटा, दिस कम्स इन पेपर, द बिजनेस विच इज सूटेबल फॉर पर्सनलाइज सर्विसेज लाइक ब्यूटी पार्लर, सैलून्स वगैरह होते हैं, जहाँ 1-to-1 आपका रिलेशन होता है, वहां पर हम सोल को लेते हैं। Now, what are the features? If you have learned features, you can even find the merits and demerits. Features matlab basically we don't have any law that is governing sole proprietorship. Yes, if you are dealing in some business which requires certain formalities to be fulfilled, वो आपको करना पड़ता है, but to open a sole proprietorship you don't need to, बने जैसे मैंने बताया कि in some cases you may require a license, like opening a gym. Gym can be sole proprietor or also in partnership, तब आप हो सकता है आपको लाइसेंस लेना पड़े, or else there are not many legal formalities right now. You don't need to register it with anyone. Yes, you need to get a UIN, यूनाइट, मतलब आपका जो है यूनिक इंडेक्स नंबर आपको मिल जाता है इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर पर्पस। वैसे घरों में भी बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे दुकानें लगा लेते हैं, घर में जगह बनी हुई है वो लगा लेते हैं, एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मेलिटीज। सेकेंडली देयर इज, आप कभी भी उसको क्लोज कर सकते हो, बिजनेस लॉस में जा रहा है, बिजनेस नहीं चलाना है, शिफ्ट कर रहे हो, you can easily close because you are not answerable to any authority. आप अपने इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स, आप इनको आंसरेबल नहीं हो, so it is easy to form and easy to close. This one of the important one, unlimited liability. What is the meaning of liability? Anything which we have to pay to the creditors, जो हमें बाहर से जो हमने लोन लिया है, एक होता है लॉस और दूसरा होता है लायबिलिटी। व्हेन वी हैव टेकन अ लोन, एट दैट टाइम द ओनर, द सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज डेब्ट्स, और उसके लिए अगर उसे अपने पर्सनल पोजेशंस को भी बेचना पड़ रहा है तो देयर इज, मतलब कि इट कैन नॉट बी स्टॉप। For example, the total outside liability of this dry cleaner was 6 lakh at the time of dissolution, और उनके पास जो assets थे वो 4 लाख थे, so he had to sell his or her property to repay the debts. Sole bearer of risk and profit. Whatever the risk is, if he is taking any venture, he has to, but at the same time अगर बिजनेस अच्छा चल जाता है तो देन ऑल द प्रॉफिट ऑल्सो गोज टू हिज पॉकेट। आई हैव सीन मेनी स्टोर कीपर्स जिन्होंने उस वक्त में, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, मतलब दे सॉ दैट दीज काइंड्स ऑफ शॉप्स आर नॉट देयर और उन्होंने एस्टैब्लिश किया। टुडे दे आर रीपिंग अ गुड, मतलब वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। दिस इज वॉट वी कॉल एज सोल बियरर ऑफ रिस्क एज वेल एज प्रॉफिट, मतलब उस वक्त में उन्होंने रिस्क लिया था, they had taken that risk. Just imagine those students who are living in this Dilshad Garden, you might know
कि वहाँ पर एक बहुत फेमस केरला स्टोर है, द वन इन द फूल वाली गली. दिस स्टोर वॉज एस्टैब्लिश, मतलब मुझे बताया जाता कि दिस स्टोर वॉज एस्टैब्लिश आज से 30 ईयर्स पहले, व्हेन बंच ऑफ साउथ इंडियंस वर देयर. लेकिन उन्होंने उस वक्त पे उस रिस्क को लिया था कि जो साउथ इंडियंस एंड दे विल बी गेटिंग द साउथ इंडियन वेराइटी. टुडे दैट शॉप इज लाइक अ हाइपर मार्केट, or you can say a small supermarket, and today they are catering to so many customers. Today he is owning, उनके पास मतलब बहुत अच्छी वाली गाड़ी है. that is risk भी उन्होंने लिया, as well as today if he is reaping that also. Control, since he is the sole one, so कंट्रोल भी उनका. कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो the person has to decide on any factor, he has to plan, he wants to take any financial help, he want to expand, he want to, मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कम करना चाहते हैं. in partnership you need to seek help from your partners. in company आपको अपने इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स को देखना पड़ता है. बट इन यहाँ पर ही इज फ्री टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रोल. No separate entity. This is a demerit. This is not a merit. It is a feature, but this also comes under demerit, because कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो होती भी है दे आर ओनली टू द लेवल, मतलब बीच बीच में जो लेवल है. इट इज़ नॉट कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप अपना करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो टू दिस मतलब कि साइट, आई हैव टू रजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं. सो अंडर द लॉ द बिजनेस एंड ट्रेडर इज वन. तो दैट मीन्स अगर बिजनेस में कुछ भी गलत हुआ है तो द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल. You cannot say the business was run by somebody else, I was not there, तो उसको responsible ठहराओ, वो नहीं हो सकता. ओनर ही है, चाहे ओनर दुकान में बैठे या ना बैठे, ही इज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके बिजनेस का लॉ के सामने कोई अलग नाम नहीं है. ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, अगर बाद में किसी वजह से बिजनेस नहीं चल पाता है, डेथ हो जाती है, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, एनीथिंग, एनी नेगेटिव फैक्टर, देन द बिजनेस कैन or the business may be closed forever. During the pandemic, I had seen many business which had closed. In fact, I had one मतलब कि मेरे उसमें है, मतलब there is one student, her father had a sole proprietorship, मतलब कि he was having his own this eatery shop, so now he had to close it. That is sole, because they don't get the financial help, they don't get the other aids कि वो उस बिजनेस को कैसे चलाएं. अगर मतलब कि मैनेजरियल टैलेंट नहीं है तो they may have to close. Now comes the merits and demerits of these. As I said, the person is having complete control. He don't need to consult anyone. चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर उसको लगता है इस अपॉर्चुनिटी को सीख करना है या इस अपॉर्चुनिटी को मुझे जो है नहीं लेना है, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर, सो ही कैन क्विकली टेक द डिसीजन. Confidentiality of information, all the business related, any financial, there is nothing. If we look into the company, the results of profit and loss has to be published. आपको एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पब्लिश करना पड़ेगा. वेयर इज इन कोऑपरेटिव you have to present it to the registrar. In partnership, आपके जितने भी partners हैं, everybody need, but in sole it is nothing. So there is no need. Easy to form and easy to close.
दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज आपको कल को लगता है कि मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहती, मैं दूसरा बिजनेस करना चाहती हूं, तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस बिजनेस, यू आर एबल टू. यू वॉन्ट टू शिफ्ट ओवर योर बिजनेस, तो आप कर सकते हो. Whereas it is not possible in partnership, you have to completely dissolve the partnership. In company it is मतलब कि next to impossible हो जाता. You cannot close it on one go. आपको investors, stakeholders, मतलब कि SEBI, आपको सबका देखना होता. Direct incentive. Whatever you are doing, whether profit or you don't need to share anything. So that is आपका direct incentive. And of course, there is always a sense of satisfaction that you get from sole proprietor. Because आप कुछ creative कर रहे हो. If you are doing something creative, मतलब कुछ innovative, and you are not sharing things with others, then whatever you have got, अगर आपको एक certificate भी मिल रहा है, you are getting the entrepreneurs award also, that is yours. On the other hand, limitations, yes, sole proprietor का ये एक बहुत ही ज़्यादा negative रहता है, that we do not have the resources. Banks will not be giving you the loans on your business. Business के लिए loan देते हैं, but they don't give loan as they give to company. And they may even ask you to keep something as mortgage also at times. They may not give a long term one. और इसीलिए रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हो जाते हैं. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ लोन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू टेक इट ओनली ऑन योर बिजनेस. आप ये नहीं बोल सकते मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, वो कहेंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वी वॉन्ट इट रिटर्न. Limited life of business. That is because if uncertainty is there, death, insanity, anything, तो वो बिजनेस आपका खत्म, वहीं पर खत्म हो जाएगा. In company, it is the board of directors who are taking it. तो कंपनी में मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर. जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो कंपनी लॉ बोर्ड में दैट वी वांट टू डिसॉल्व द कंपनी, वी वांट टू गो फॉर द लीगल फॉर्मेलिटीज, तब तक आपकी कंपनी नहीं होती. यहां पर ऐसा नहीं होता. I had already given you the example of that uncle who was having a photostat shop in DG. Unlimited liability. This is because when the business fails, then क्योंकि आपका जो बिजनेस फेल हुआ, एनी पुअर डिसीजन हुआ, फाइनेंशियल बर्डन हुआ, everything has to be borne by the proprietor himself. चाहे वो उसके लिए उसे अपने assets बेचना पड़े, nothing can be done because business is not a separate entity in law. अब हम माल्या जी का जानते हैं, everybody is well aware. Why उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है? जब तक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरी जो है, ये डायरेक्टर जो है वो नहीं इनको इश्यू करेगी कि आप इनके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच करो, तब तक दे कैन एंजॉय. बट इन दिस यू कैन नॉट. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. In class 12, you are going to learn the entire skills that when we are managing a business as a manager, we need to have certain skills. आप में से कोई ऐसा होगा जो CA बनेगा, लेकिन कोई maximum students are there, those who end up doing MBA. Why do we do MBA? Because that helps us to build up our managerial task. हमारी ability. If we are the head of purchase, we know what are the things we need to keep in our mind. हमारे decisions जो हैं, they are scanned, but in
सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इंसान जिसने जस्ट टाइम पास करने के लिए, जस्ट अपने लाइवलीहुड के लिए अपनी दुकान खोली है या एक बिजनेस खोला है, ही मे नॉट बी हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी कि उसे कैसे रन किया जाए। बिजनेस को ओपन करना और बिजनेस को चलाना दो अलग अलग कंसेप्ट होता है। एंड दिस आई हैव सीन इन पीपल, आई हैव सीन इन पीपल, माई ओन सिस्टर, मतलब कि जैसे मैम थी, मतलब मैम है, तो इवन हर हस्बैंड ऑल्सो ट्राइड। तो मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा कि भाई मत करो, मैं उनको राखी बांधती हूँ, तो हिज मतलब भाई है वो, तो मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा मत करो, बिकॉज बिजनेस में पैसा तो आप लगा सकते हो, बट उसे चलाने के लिए जो आपको एक टैक्टफुल, यू नीड दोज टैक्टफुल, आपको जान पहचान बहुत सारे लोग होंगे बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड, बट एवरीबडी विल नॉट गिव यू द कॉन्फिडेंशियल matters. Then he was into that business for some time, then he had to close it. So limited managerial ability. So these are the positive and negative of sole proprietorship. Yet इंडिया के अंदर आपको एक गली के अंदर भी 10 दुकानें दिख जाएंगी. दिस इज बिकॉज इट इज ईजी टू फॉर्म विथ लिमिटेड, और जब लोगों को लगता है दैट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस कर लेते हैं, जबकि बिजनेस इज एक्चुअली अ सीरियस प्रोसेस. अभी रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मतलब हमारे ही इंस्टीट्यूट की थी वो, तो उनके जो फादर थे, मतलब ही वॉज नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयमेंट, तो उन्होंने एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट कर दी, बिकॉज घर के नीचे जगह होती है, वो स्टार्ट कर लेते हैं. So it is easy, so that is why it is very common also in our country. You will not find these kinds of business so common in other countries, right? The second is joint Hindu family business, which is only found in India. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था that in India we used to have the कारखानास, मतलब जो लोग होते थे, फैमिली के जो मेंबर्स होते थे, वही जो है एक बिजनेस में काम करते थे, उनकी पूरी फैमिली काम करती थी, लाइक द वीवर्स. तो मर्चेंट्स आके उन्हें पैसा देते थे, तो पूरी फैमिली उसमें लगी रहती थी. सो देयर वर मेनी फैमिलीज विच हैड अर्न द मनी ऑल्सो. गुजरात के अंदर पटोला, देन इन आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली, and then in Rajasthan many of the jewelers, they all, अगर आप देखोगे तो आज भी उनका हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है. this passes from one generation to another. The business is owned by, मतलब कि owned and carried by the members of Hindu undivided family. But undivided यहाँ पर हम second उसमें बोल सकते हैं the joint family system. बट जब अब जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आर ऑल्सो ब्रेकिंग, तो हमारा ये जो हिंदू अनडिवाइडेड है ये भी ब्रेक हो रहा है. सेकेंडली, पिछले कुछ सालों में जो अभी हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था बेटा, दैट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ये जो है जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू में भी आता है. मैंने बिजनेस किया, मेरे बाद मेरे बेटे ने किया, उसके बाद उसके बेटे ने किया, बट वी आर नॉट मैनेजर्स. And we don't get certain resources also. It is actually सोल में एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है, जॉइंट फैमिली में पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, बस. दैट इज द ओनली डिफरेंस. देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. वी डोंट गेट द रिसोर्सेज, एंड दैट इज वाई दिस बिजनेस सिस्टम इज राइट नाउ breaking in our country. In our country we have Hindu law, जहाँ पर देर आर टू पीपल, मतलब टू, सॉरी, आपके घर हैं, आपका दयाल बाग एंड मितिक्षरा. इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ. दे हैड एस्टैब्लिश्ड, जैसे आपके वेस्ट बंगाल वगैरह में क्या होता है, इवन द गर्ल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट इन रेस्ट दे डोंट. सो दे हैव बीन generations and 3 successive generations can be members, मतलब दादा बेटा पोता, they are members.
and all the members are called as co-partners, not co-partners but partners. एंड जो घर का सबसे बड़ा इंसान होता है, चाहे वो फादर हो या घर का बड़ा बेटा, ही इज द मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फिगर कॉल्ड एज कर्ता. The joint family business is on decline because of the joint Hindu families in the country. And as I told you, the second one is also that we are not getting the resources right now. That is also one of the factors. To form a joint family business, there should be at least 2 members and ancestral property, not father's property, grandfather's property to be inherited by them. And there is no need of any मतलब की membership, but yes, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो आता है. कोई की डिस्प्यूट अगर होता है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है. द लायबिलिटी यानी कि इफ इन केस क्रेडिटर ज्यादा हो गए, डेट ज्यादा हो गया, तो कर्ता हैज टू लुक इनटू ऑल द लायबिलिटी. और को पार्टनर्स जैसे जैसे उनकी एज होती है, जो काम वो कर रहे होते हैं, जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी उनको दिया है, एक घर है उसमें 2 कमरे हैं, उनको जो प्रॉपर्टी उनका है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है लायबिलिटी होती है. द कंट्रोल लाइज ओनली विद द कर्ता. यानी कि कर्ता पढ़ा लिखा हो, MBA हो ना हो, ही इज द वन हु इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस. And whatever business he has taken, whatever decisions he has taken, whether it is in the favor of business or against, everyone has to bind, or else they have to leave that business. Continuity, yes, like any other business, like company, it can go, क्योंकि जो eldest member है वो business को संभाल लेता है. हाँ, अगर कोई बिजनेस को आगे नहीं करना चाहता है, लाइक घर में बाद में सिर्फ 2 बेटे रह गए, एक बाहर चला गया और दूसरा अलग रह गया, तो दे कैन टर्मिनेट इट. माइनर मेंबर्स नहीं होते हैं. वंस हु बिकम मतलब कि हु आर बॉर्न टू दैट फैमिली, वो अपने आप ही उसके मेंबर्स बन जाते हैं. दे आर नॉट मेड, वो बन जाते हैं अपने आप. दैट इज वन. According to a Hindu Succession Amendment Act, the daughter of a co-partner of a joint Hindu family shall by birth become a co-partner. पहले नहीं था, as I told. At the time of partition of such, अगर कोई Hindu family, the partnership property shall be equally divided. The eldest member, anyone can be karta, married daughters also have. ये हमारा जो है एक्ट हुआ था बाद में, बट येट वी आर हैविंग, अभी भी हमारे पास ऐसे 3-4 हैं. इनफैक्ट आई कैन से दैट रिलायंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट हिंदू, बट लेटर ऑन इट अटेन द पोजिशन ऑफ कंपनी. इट वॉज पास बाय धीरूभाई अंबानी टू हिज सन्स, एंड जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उनकी उनसे लिया था, बट later on it was completely आपके हल्दीराम्स ये सब आपके जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का ही एक एग्जाम्पल है. हल्दीराम्स जो है, अगर आप उसकी थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिकल, विकीपीडिया में बहुत कुछ नेगेटिव मतलब बहुत सारी चीज़ें एडेड होती हैं. MDH, वो जो अंकल अभी जिनकी डेथ हुई थी, MDH मसाला, दीज आर ऑल मतलब कि आपके हिंदू बिजनेस के हैं. दे स्टार्टेड, देन दे पास्ड ऑन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. व्हेन दे सॉ द प्रॉफिट इज देयर, तो उन्होंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया. हल्दीराम्स, इट वाज स्टार्टेड बाय 2 ब्रदर्स. लेटर ऑन उनके जो नेक्स्ट जैसे बहुत सारे पापड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इन राजस्थान, दे आर ऑल इनटू जॉइंट हिंदू. दैट इज आपके, ठीक है. वी विल नॉट बी हैविंग any kind of what we call as positives and negatives of Hindu, because इतना हिंदू में आपको सिर्फ हिंदू बताना है. According to the syllabus, the merits and demerits are not going to be included, right?
The third one in our country is cooperative. Even cooperative is more prominent in our country. This is because cooperative होता है आपका voluntary association, मतलब दोस्त, इट इज नॉट एक्चुअली, हम इसको बिजनेस भी कह सकते हैं एंड सोशल भी कह सकते हैं. इसको बिजनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वी आर इंडल्ज्ड इन सर्विसेज एंड गुड्स. एंड कोऑपरेटिव सब लोग मिलकर, से 10 पीपल आर देयर मिनिमम आपकी, दे जॉइन टुगेदर, और जो मेंबर्स हैं, मतलब द मेंबर्स आर ओनली गोइंग टू बी बेनिफिटेड. They make themselves, they frame themselves into one unit called cooperative. और ये इसीलिए किया जाता है कि जो मिडिल मैन होते हैं they are eliminated. But cooperative has to be registered under Cooperative Society Act 1912. The process of setting is very easy. बस 10 adult persons आपकी minimum MCQ. एंड जो कैपिटल्स होते हैं, इट इज जो भी मतलब कि हमने लगाया होता है कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डील विथ, उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल को फिक्स करते हैं एंड ईच मेंबर जो है कितना देंगे वो हम डिसाइड करते हैं. Those who want to get that benefit has to become the part of that cooperative society by paying that fees. The society acquires a distinct legal identity when you register it. This is Indian Cooperative Society Act 1912. Now, what is its features? Voluntary membership. It's open. They open it. आपका बहुत सारे आपके जो हैं फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव में होता है क्योंकि दे ओपन, देन दे डोंट गेट द मनी, और समटाइम्स they may work for some time and then a person is free to join a cooperative society and also leave any time. मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना करना है, कितने दिन तक उसको सर्व करना है. ही ओनली हैज टू सर्व अ नोटिस बट नॉट अ कंपल्शन. देन दे हैव द प्रिविलेज टू लीव ऑल्सो लीगल स्टेटस as it is registered under Cooperative Society Act 1912. So we need to register it. दैट मीन्स उसकी जो एंटिटी है वो मेंबर से अलग है. अगर सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर कैन बी प्रॉपर्टी, देयर कैन बी लीगल केसेस जो है काम, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल रही है, इट इज नॉट डन बाय एनी वन मेंबर. मेंबर्स जो है मतलब कि जो कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके नाम से हम दूसरों पर केस डाल भी सकते हैं, और अगर हमने गड़बड़ किया तो हमारे सोसाइटी पर भी केस हो सकता है. एंड इट्स लीगल एंटिटी डज नॉट इफेक्ट बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि इट हैज द फीचर ऑफ कंपनी ऑल्सो. कंपनी में भी ऐसा ही होता है. कंपनी में भी मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टिंग लीगल एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इट हैज अ फीचर ऑफ बट एंड द लायबिलिटी, यानी कि अगर मान लो किसी का नुकसान हुआ है, वाइंड अप करना है, तो जो मेंबर्स का जो अमाउंट उन्होंने कैपिटल के तौर पर कंट्रीब्यूट किया, दैट इज द अमाउंट दैट दे हैव टू पे. दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर. It has got a democratic control. Why? क्योंकि मान लो आपका कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ है हाउसिंग. नाउ एवरीवन इज नॉट गोइंग टू हैव वर्क. Everyone is not going to daily go to the society to take the decisions. Nobody has the time. तो क्या किया जाता है? There is a managing committee. कौन पैसों का हिसाब रखेगा? ट्रेशरर. कौन डे टू डे अफेयर्स का रखेगा? एक. कौन पूरी देखभाल करेगा? ट्रस्टी. एंड दीज पीपल टेक डिसीजंस, और इनको वोटिंग के थ्रू चूज किया जाता.
एंड जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो जितने भी मेंबर्स हैं सबको दे दिया जाता है। दस cooperative society has a democratic character. This is an important point of this particular concept. Its purpose is to serve to its members, not to profit. और जो भी उसका सरप्लस आता है, as per the bylaws, it has to be divided among the members as dividend. Amul is one of the cooperative ventures. Today we know that Amul is based on so many brands. आज milk भी है, packaged food भी है, ice creams भी है, but it started with a simple concept of milk. It was started by J.S. Kurian, जिन्होंने 46 में that was started. Later on कुरियन ने मतलब कि ज्वाइन किया था ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो खुद को मैक्सिमम मतलब कि दे डिड नॉट वांट द इंटरमीडियरीज टू कम, एंड दिस वाज स्टार्टेड इन आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड which is called as Amul now, and today we are having more than 2.21 million farmers. You can imagine there are many cooperative societies. बहुत सारे cooperative societies हैं मार्केटिंग के लिए, मीन्स नॉट ऑल द बिजनेसमैन, स्पेसिफिकली आपके जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, दे कैन नॉट मार्केट, दे डोंट नो व्हाट द पीपल वांट, दे डोंट नो हाउ टू सेल. तो ये लोग मिलकर अपने आप को एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव में बना लेते हैं. ट्रेडर्स सोसाइटी, दे हेल्प ईच अदर, पैसों में भी हेल्प करते हैं, इन डिसीजंस ऑल्सो. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, द वेरी कॉमन इन इंडिया, जिसमें सारे फार्मर्स मिलकर दे पूल अप. देन आपके हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, जिसमें लोग मिलकर पैसा पूल करते हैं और एक जमीन खरीदते हैं, एंड देन इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव, बैंक्स गिव देम लोन ऑन लेस इंटरेस्ट. नाउ what are the merits and demerits? Ease of formation. 10 members आपको चाहिए, थोड़े से लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्व्स अंडर द एक्ट. डेमोक्रेटिक नेचर है. whatever the contribution you have done, everyone is having the equal voting rights, and also to stand. I can stand as a treasurer. If I want to stand as a secretary, I can stand. So there is democratic structure, limited liability. In sole, we have to sell the personal property अगर business debt में जाए तो. बट इसमें हमने जो भी कैपिटल दिया है उसी के एक्सटेंट में हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. से इफ इट इज 1000 रुपीज आई हैव पेड, एंड कल को बंद हो रहा है तो मैं 1000 ही दूंगी. Stable existence if the company is if the cooperative society is running, तो कोई भी एक मेंबर के डेथ या बैंक्रप्सी से सोसाइटी बंद नहीं होती. एंड दे आर ऑफरिंग द ऑनररी मतलब सर्विसेज टू द सोसाइटी, तो दे फोकस मोर ऑन टू द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. जैसे उसमें भी है, इवन इन दिलशाद गार्डन देयर इज अ कोऑपरेटिव, मावेली कोऑपरेटिव. ये लोग मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीदते हैं. अब मिडिल मैन के पास 20 to 30% आपका प्रॉफिट जाता है. ये लोग क्या करते हैं, उस 20 to 30% को रिड्यूस कर देते हैं, एंड दे सेल इट आउट ऑन लेसर प्राइस टू देयर. तो इससे आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है. बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड, सो गवर्नमेंट इनको टैक्सेस जो भरने होते हैं देते हैं. वेदर इफ यू आर रजिस्टर्ड, then the tax rate is less. And for certain products, the government also gives subsidy. If they are getting the loans, it is on low interest. But on the other hand, limited resources. That is because हम capital जो starting में करते हैं, everything we get only from the members.
एंड नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमें डिविडेंड तो मिलेगा नहीं. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मुझे डिविडेंड तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता. Inefficiency of management. As I said, not everyone is professionally equipped. I know many professional मतलब कि cooperative society जिनमें जो retired होते हैं या घर में होते हैं वो कहते हैं हम देख लेंगे, but they don't have the professional skills. That is one minus point. They are unable to attract and employ expert managers क्योंकि they cannot pay the salary. वो नहीं ला सकते हैं. Like in a company, a person is MBA, a person is BBA. Lack of secrecy. In sole proprietor, you are not supposed to show your financial bills. आपका जो financial statement है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड अकाउंट, कैश स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं दिखाना. देयर इज नो ऑडिटिंग, नथिंग इज देयर. बट यहाँ आपको करना होता है बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट टू द रजिस्ट्रार. देन द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल्स. ऑडिटिंग हो जाता है, सबमिशन ऑफ अकाउंट होता है, एंड अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो जो सब्सिडीज वो देते हैं दे कैन टेक बैक. Moreover, certain times there is differences of opinion because this is only purely done for the purpose of honorary services. तो कई बार क्या होता है, जैसे लोग मतलब कि होता है ना कि they have come into the treasurer post, उनको पोस्ट मिल गया है तो what they do is उनको लगता है कि पोस्ट मिल गया तो certain times they may dominate their personal interest. That can be there. These are as I had given you the examples. अभी मैंने आपको example दिया था. Consumer cooperatives, consumers cooperative societies are formed to protect the interest of consumers. ये आपके जागो ग्राहक जागो. अगर आप जो हो इफ़ यू आर मेंबर ऑफ एन कंज्यूमर तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आपके नए मतलब कि रूल्स निकालती है यू कैन मतलब कि एक्ट एंड यू कैन गेट द आपको जो है प्रोटेक्शन मिलता है. प्रोड्यूसर्स, नॉट एवरी प्रोड्यूसर इज एबल टू बाय द थिंग्स एट अ कॉस्टली रेट. सो कोऑपरेटिव में क्या होता है व्हेन दे फॉर्म देमसेल्व्स तो दे गेट उनको जो है उनको पैसा मिल जाता है ऑन अ चीपर रेट एंड दे मे पूल अप देयर मनी टुगेदर और साथ में मिलकर दे मे गेट द रॉ मटेरियल्स. मार्केटिंग, as I said, not everyone is a good marketer, not a seller, so they may. Farmers cooperative, the very most common in our country. Credit, मतलब RWS में भी होते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनमें मेंबर्स हम बन जाते हैं. देन दे प्रोवाइड लोन्स एंड दे ऑल्सो डिसाइड द इंटरेस्ट एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर द फॉर्मल सेक्टर ऑफ हमारे मतलब कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर्स में आता है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां इजी टर्म्स पे आपका क्रेडिट दिया जाता है without any collateral, but the amount given is less. And cooperative housing societies, as I had already told, they construct flats और मतलब कि plots लेते हैं and this was there in आपके जो सूरजमल विहार है, that's a cooperative area. There are many, सरस्वती कुंज, many areas are there जहाँ मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक है. आई डोंट नो द नेम बट माई कजन शी हैज़ बॉट इट. मतलब ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे हैड पुल्ड अप द मनी, देन दे हैड बॉट अ प्लॉट नियर हरियाणा और उसके बाद वहाँ उन्होंने फ्लैट्स बनाए थे, अपार्टमेंट्स बनाए थे एंड लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑन द दे हैड गॉट द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉट फ्रॉम द, तो उनको लोन मिला. देन the society was established. Today not everyone is belonging to central government,
बट नाउ इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी. तो ऐसे आपके बड़े सारे सोसाइटीज़ बनते हैं, राइट. सो दीज हम लोगों ने आज पढ़ा है 3. फर्स्ट इज सोल, सेकेंड आपका हिंदू अनडिवाइडेड, एंड थर्ड इज कोऑपरेटिव. वी आर लेफ्ट विथ one is partnership. I think that would be completed in the next, and of course the most important, that is आपका company. And you should always be more concerned about the company part, since within company also you have different parts, like what is incorporation, what is inception, incorporation, how do you start, right? Chali.